This is the tribal hinterland of the country. The stories here are buried in the dense lush green forest as the region remains mostly cut off from the mainstream society. I'm in Bastar, which is a part of India's Red Corridor, a tribal region plagued by Maoist insurgency. I've come here to explore the status of women living in the red zone of the country. Meet Ramsila, a 10-year-old girl from the indigenous Gond tribe. She lives in Kasuli village in Dantewada district of Bastar region. Ramsila is in 4th grade. She has just returned from school. Ini makin kon kami ini masin ki. Today, she finds herself a free bird in these forests. But what does the future hold for her? Will she live as freely as she does today? Will she be able to complete her education? Or will she also abandon it like Hemlata, a 19-year-old girl from her tribe? इतने सारे जन के लिए भी पैसा नहीं पूर रहा था, इसलिए इसको नहीं खर्च ज्यादा होता। फिर आप कमाते हो घर में? हाँ। क्या काम करके कमाते हो? कूली जाते हैं काम करने की दिन। अभी तो यहाँ आते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, अब नहीं जा रहे हैं। Poverty is a major hurdle in the Red Corridor, often pushing girls like Hemlata out of school. रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर घर का काम कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह, बर्तन धोना, हर बार का काम रहता है तो जाते हैं। बाहर का क्या-क्या काम रहता है? रोफा लगाते हैं, घास निकालते हैं और जंगल से लकड़ी वगैरह भी लाते हैं। कितना दूर जाते हैं जंगल से लकड़ी लाने? 10-15 किलोमीटर। Tribal societies are less patriarchal than mainstream society, as women play a substantial role in contributing to daily life. But this culture can turn oppressive as women frequently perform hard labor, sacrificing their health and education. But poverty is just one issue. The region's long history of violence and the conflict between the Maoist and the state is entwined in the past, present, and future of women of Bastar and the gender inequality they face. Maoists are armed groups that challenge state authority. Driven by the socio-economic marginalization and state exploitation, Maoism entered Bastar's jungles in 1980.
In the ideological clash between democracy and Maoism, women are usually the victims rather than active participants. बाहर पढ़े लिखे वाले औरत लोग अच्छे रहते हैं, उन लोग को कुछ नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, उन लोग अच्छा रहते हैं। मतलब वो अंदर वाले गांव वाले औरत लोगों को उन लोग को आज़ादी नहीं रहता है। Tulsi is a former Naxalite. She has surrendered after a campaign was started by the police in Dantewada district. The campaign Lone Varatu, which means homecoming in Gondi language, allows insurgents like her to give up armed rebellion and take up the police uniform. मैं घर में रहते समय मैं तो पहले शुरू से मैं सोची हूँ स्कूल पढ़ूंगा बोल के मैं सोची हूँ। स्कूल पढ़ के मैं कुछ गुरुजी सिस्टर ऐसे बन जाऊंगा बोल के मैं शुरू में सोची थी। Tulsi did not choose insurgency, as she was coerced into the Naxal's army at a very young age. मैं 2011 दिसंबर महीना में वही नक्सली लोग मेरे को लेके गए थे घर से। तब उन लोग मेरे को नहीं जाना, हम लोग के साथ रहना है बोल के मेरे को मना किए हैं। उसके बाद से मैं रोने को शुरू कर दिया हूँ। मैं कैसे नहीं यहाँ कैसे रहूँगा बोल के मैं वही सोचती थी। मतलब 2-3 महीना तक सोचती थी, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। मैं यहाँ नहीं रहूँगा बोल के 2-3 बार भागने का भी कोशिश की हूँ। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरे को ट्रेनिंग में भेज दिए थे। 10 दिन में ट्रेनिंग हुआ था। फिर ट्रेनिंग होने के बाद अलग अलग दल में बांट दिए थे मेरे को 2-3 साल के बाद फिर कमांडर बना दिए थे। मैं 2011 से 2021 अक्टूबर महीना तक मैं नक्सली में काम की हूँ, 10 साल तक। बारिश के समय, धूप के समय, ठंड के समय, ऋतु समय दिक्कत होता था। चलते कपड़ा लत्ता भी ठीक से नहीं मिलता था। 2-3 साल एक ही कपड़ा को पहना है। मर जाने से भी गांव वाले मतलब माँ बाप उसका फोटो देखते दफनाते हैं फोटो को। मतलब लाश माँ बाप को नहीं मिलने से भी कोई कुछ नहीं है बोल के ऐसे उन लोग समझाते हैं। Activist and journalist working in the Naxal hit areas has alleged that Naxals are forcing tribal youth, both girls and boys, to join the cadre. The misled youth who decided to give up are being harassed and even sexually assaulted by the Naxal leaders. रात को चलते समय कभी कभी याद आता है, अरे मैं कैसे इधर आई हूँ, घर रहने से अच्छा है बोल के ऐसी सोचती थी। फिर मैं सोची यहाँ रहने के भी कोई मतलब नहीं, मैं कैसे भी करके घर भाग जाऊंगा बोल के मैं भाग के आई हूँ। मतलब यहाँ सरेंडर करूँगा बोल के नहीं भाग के आई हूँ। मतलब घर जाके घर में रहूँगी बोल के मैं आंध्रा में भाग गई हूँ। तब आंध्रा से फिर उन लोग नक्सली वाले पीछा करे थे, फिर लेने गए थे। तब वहाँ से भी भाग के इधर सुकमा साइड आई हूँ। तब यहाँ दंतेवाड़ा DRG वाले जाके मेरे को लाए हैं। तब सरेंडर किए हूँ। 2021 दिसंबर 5 तारीख से को सरेंडर हुआ था। मतलब यहाँ आई हूँ तब से मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। बाजार जा रही हूँ, बर्थडे जा रही हूँ और शादी में जा रही हूँ नाचने, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। Tulsi's dreams mirror those of girls worldwide. But she's not the only one who has lost her freedom due to the Maoist-State conflict. There are countless women like her in the red zone. I met one such woman, Soni Sori, a tribal activist and a former teacher who was arrested under the false accusations of having links to the Maoists. Soni Sori's arrest had sparked a massive furor in India and abroad. In one of her letters to the Supreme Court, Sori asked, giving electric shocks
stripping me naked, shoving stones inside me. Is this going to solve the Naxal problem? पुलिस और नक्सल के बीच की लड़ाई में हम जैसे महिलाएं मतलब कैसे फंस जाते हैं और कैसे हम लोग को अपने खुद के आत्मसम्मान के लिए लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, कितनी मुसीबतें, कितनी संघर्ष करनी पड़ती है। मैं एक पढ़ी लिखी थी और कुछ महिलाएं यहाँ हैं कि पढ़ी लिखी नहीं हैं, और मेरी पढ़ाई लिखाई होने की वजह से मैं तो यही सोची कि नहीं, मेरी शिक्षा में और मुझे किस तरह से फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो मेरे अंदर की सोच थी। During her time in prison, she wrote multiple letters to narrate the horrors that women face in the shadows of conflict. चिट्ठी लिखने का सबसे मेरा मकसद था कि हम महिलाओं के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से अत्याचार को जूझते हुए हमको जेल में डाला जा रहा है, ये पता चलना चाहिए। और वो चिट्ठी ने पूरी मेरी लड़ाई का एक ताकत बना दिया। दस अक्टूबर की रात 2 महिला पुलिसकर्मी ने मुझे आकर नींद से उठाया और एक कमरे में ले गए। एसपी ने दोनों लेडीज को साफ शब्दों में धमकी दी और कहा कि कोई भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो दोनों उस कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद मुझे लगातार बिजली के झटके दिए गए। मेरे कपड़े पूरी तरह से उतरवा कर उसने मुझे सेल में 3 आदमियों के साथ छोड़ दिया। पत्थर उस समय मुझे नहीं पता था क्या डाल रहे, पर दर्द इतना, तो दर्द को मैं सहते सहते मैं इतना थक। और आज भी मेरे को लगता है कि ये मैंने क्या गुनाह किया था। अरे भाई, मैंने अगर कोई अपराध किया रहा हो या फिर जो है, कोर्ट तो था ना, कोर्ट में मेरे को इज्जत के साथ कोर्ट फेस करते, जेल भेज देते, क्या होता। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे को जेल भेजा गया। तो ये औरतों का मतलब इस जगह का ये है। तो मैं आज खुद को आज इसलिए जना स्ट्रॉन्ग हो गई। एक समय था मेरे बताते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जाता, ऐसी स्थिति थी। आज एक समय है, लड़ते लड़ते मैं इस हद तक स्ट्रॉन्ग आ गई। आज मैं जो हूँ ना सोनी सोरी, मेरे को आप जो बता रहे, मेरे को लगता है मैं वो नहीं हूँ। वो सोनी सोरी आज भी तड़प रही है, एक कोने में रह के आज भी बिलक रही है, क्योंकि उसको मैं अपनी नज़रों में देखती हूँ कितना तड़पती रही है, कितना तकलीफ से जूझ रही है, कैसे उसके शरीर के साथ नोचा जा रहा है। आज भी दिखती है, लेकिन मैं अपने आप को महसूस कर, मैं वो नहीं हूँ, जो वो है वो मैं नहीं हूँ, और मैं हूँ वो जो नहीं। She talks about how sexual violence is being used as a weapon in this conflict, and how women are stripped of every bit of their honor and dignity, especially at the hands of state agents. जैसे आज राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी ना, आदिवासी महिला, हम सबको लगता है, महिलाओं को भी लगता है कि हमारे समुदाय की महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी को भी लगता है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन जहाँ वहाँ बैठी है, क्या उसको तब पावर है, इतना उनको जो निर्णय करने का अधिकार है? तो मेरे जो सोच से नहीं है। क्यों? अगर वो था तो आज मणिपुर जैसे घटना घटी,
तो फिर वो क्यों निर्णय नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं ये है कि बैठा तो गया पर उसको पूरा अधिकार और उसके पूरी ताकत नहीं दिया गया। 2011 में ये जो घटना हुई है वो मैं ही स्वयं हूँ, पर ये सवाल आज मेरे अंदर में ये लगता है, वो भी महिला थी पर वो पुलिस वाले थे, मैं भी महिला थी, लेकिन एक पुरुष वो कैसे हम तीनों महिलाओं के ऊपर एक दबाव डाला ना, वो महिला चाहते हुए मुझे नहीं बचाया। तो वो ये नहीं बोल पा रही है नहीं सर ये भी मेरी तरह महिला है, ये तो नियम कहता है कि महिला के साथ पूछताछ में महिला होनी चाहिए, तो ये हमारा रहने का अधिकार है, हमको रहना चाहिए। ये महिलाएं बोल सकती थी, लेकिन वहाँ उनकी पेट की वजह से नहीं बोल पाई, या उनकी या नौकरी की इतनी ज़रूरत थी, अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर हुई। लेकिन वो सोचो आज की ज़िंदगी में कि एक पेट पालने के लिए, परिवार के पालने के लिए किसी की इज्जत को लूटते हुए भी हमारी महिलाएं देख के वो रह जाती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति एक हमारे भारत सरकार में आए तो कितनी बड़ी बात है। The blatant disregard for women's rights, their freedom, and the entitlement displayed over their bodies reflect a broader issue, a persistent gender inequality in our society. Tribal women and those from scheduled caste face added layers of oppression, often at the hands of powerful men. As a woman living in Delhi, I feel we can speak up for ourselves, and our voice is heard by the system, and yet it is one of the most unsafe cities for women in our country. But my experience in the Red Corridor tells me that many cases of injustice against women in this region go unreported. Ironically, Chhattisgarh, which includes Bastar, is the top performing state on gender equality goal, as per the Niti Aayog's SDG report for 2021.